discussion is reproduction in flowering plants. In my previous video, we have talked about the general overview of the reproduction process, right? Like what is the further subdivisions of the process and what is it all about, right? But as I have told you earlier, that now as we move on through the chapters, we'll go more deeper and deeper into the topics, right? So the first chapter or the first detailing which we are gonna do today is basically what? Pre-fertilization events. As I have told you earlier, the fertilization is divided into three sub-processes: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization, right? So today we are just going to discuss about pre-fertilization event. Also in pre-fertilization events, we have two more processes, that is gametogenesis and gamete transfer. Transfer through pollination and through various other agents, right? And gametogenesis. So gametogenesis में भी दो male reproductive system and female reproductive system. Fine. So अभी हम किस बारे में बात करेंगे? Just of male reproductive system, and wherein first of all we have to know about what is flower. क्योंकि सारे के सारे प्रोसेसेस जो भी आप आगे पढ़ने वाले हो वो सारे के सारे ही किसमें होंगे? फ्लावर में. तो अगर आपको डिफाइन करना हो फ्लावर को, व्हाट इज एक्चुअली फ्लावर, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? सो फ्लावर इज जस्ट a site for sexual reproduction, right? Or in NCERT it's written morphological and embryological marvels, ठीक है? So to be very specific, but अगर general terms में अगर आप बोलोगे तो क्या बोल सकते हो? Just it's a site of reproduction, ठीक है? और sexual reproduction. Now फ्लावर के पार्ट्स आपको पता होंगे, 9th-10th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट? कि उसका स्टेमन हो गया, पिस्टल हो गया, ओवरी हो गया एंड एंथर हो गया, थैलेमस हो गया, राइट? लाइक यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस पार्ट्स, राइट? So what is flower? Just a general definition and its parts. So flower, before forming a flower, there has to be decision of making a flower or undergoing sexual reproduction, right? So कहने का मतलब क्या है? कोई भी प्रोसेस होना एक अलग बात है, बट उससे पहले आपको उसकी प्रिपरेटरी फेज जो है वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी में आपके सारे हार्मोनल रेगुलेशंस एंड ऑल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज होंगे, राइट? यहाँ पे भी यही होता है, बट अभी हम उस पार्ट में नहीं जाएंगे. वी आर जस्ट जनरली डिस्कसिंग अबाउट द parts and their functions, right? So talking about male reproductive part, which is known as Androceium, while female reproductive part is known as Gynoecium, right? So in Androceium, what is actually Androceium in flower? Wall of stamens, right? Group of stamens. You know that कि ovary या pistil, stigma, style, ovary, right? ये तीन जो है, pistil जो है वो एक सिंगल होता है यूजुअली इन अ फ्लावर, वाइल स्टेमन्स या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रुप में होते हैं, ठीक है? और वो हर केस में होता है. एनिमल्स के केस में भी हमेशा मेल गैमीट्स लार्जर इन नंबर प्रेजेंट होते हैं देन फीमेल गैमीट्स, राइट? So talking about the Androceium part, we have wall of stamens, right? And stamen has two more parts, that is filament and anther. Filament is long slender part जो कि नीचे से आप देखते हो अटैच्ड होता है. प्रॉक्सिमल पार्ट उसका अटैच्ड होता है थ्रू थैलेमस और पेटल. नीचे से फ्लावर के जो थैलेमस पेटल से जो निकलता है दैट इज योर लॉन्ग स्लेंडर जो पार्ट है, दैट इज योर फिलामेंट. फाइन. While anther is the uppermost bilobed structure which you see, which contains pollen grains, right? That is anther. So आपका ये हो गया stamen का general structure. Now अगर आप रैंडमली 10 फ्लावर लेकर आते हो और उसका स्टेमन्स बाइसेक्ट करके देखते हो उसको अंडर माइक्रोस्कोप, सो आप यूजुअली उसमें देखोगे कि हर डिफरेंट प्लांट्स का नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स डिफरेंट होंगे, ठीक है? विच वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, राइट? सो वो एक चीज हो गई कि नंबर एंड लेंथ इज नॉट एट ऑल कॉन्स्टेंट, इट वेरीज. Fine. Now, first part is a typical Angiosperm Anther. Now we have to go to the anther part only because filament and उसका तो main फंक्शन नहीं है. मेन जो पॉलिन्स बनने हैं वो उसमें किस में बनने हैं? एंथर में.
तो वो हमें स्टडी करना है फर्दर. सो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है, फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस? बिकॉज जब आप जनरल टीएस देखते हो, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो, किसका? एंथर का, वहां पर आपको क्या दिखता है? 2 लोब्स दिखते हैं. ठीक है, 2 लोब्स, बट वो पूरी तरीके से डिटैच्ड लोब्स नहीं है, अटैच्ड लोब्स है. राइट. सो 2 लोब्स दिखते हैं. जैसे पी को अगर आप उसको खोलते हो तो उसमें आपको 2 कॉटिलेडन्स टाइप दिखते हैं ना, सेम. तो यहाँ पे भी आपको 2 लोब्स दिखते हैं. सो दिस इज फर्स्ट लोब, दिस इज सेकेंड लोब. फाइन. एंड विद इन 1 लोब देयर आर 2 थीकास. सो दैट्स व्हाई बाइलोब्ड, dithecus. Within each lobe there are 2 further thecas present. Fine. Now, in the middle of this anther there is a connective tissue present. ठीक है, जो कि हर नॉर्मली प्रेजेंट होता है. आप देखोगे कनेक्टिव टिश्यू, जिसका काम आप आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यू नो एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव टिश्यू, इट कनेक्ट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज. ठीक है. नाउ बाइलोब डाइथेकस अंडरस्टूड. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जब भी आप एंथर को देखोगे अंडर माइक्रोस्कोप, आपको इसके साइड्स में ना, जैसे ये है, यहाँ से आपको लाइंस दिखेंगी, ग्रूव. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइन ऑफ डिहाइसेंस, जैसे हम बोलते हैं कि वो एक स्पेस है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होकर डिहाइस होंगे. ठीक है, उधर से रिलीज होगा पॉलन्स फ्रॉम एंथर्स. ठीक है. सो दे सेपरेट थीका. तो ये थीकास को सेपरेट करते हैं. आपको यूजुअली जब आप चारों तरफ देखोगे तो आपको दिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. काइंड ऑफ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली देख रहे हो आप, 4 कॉर्नर्स टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, एंड विद इन ईच कॉर्नर्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर. फाइन. यहाँ पे आपको छोटे छोटे रीजन्स दिखते हैं, दैट इज नोन एज microsporangia. So in one anther there are 4 microsporangia. Fine. And these microsporangia are going to form pollen sac. Now we talk about the structure of microsporangium, right? So talking about the structure of microsporangium, there is you can say a circular outline. ठीक है, nearly circular outline, like not almost spherical or circular, but more like a circular kind of outline. ठीक है. Now last में आता है इसका जो main point है, जो है वो ये है कि 4 wall layers से ये surrounded होता है. क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम, और क्या है ये? फ्यूचर pollen sacs. फाइन. सो यहाँ पे 4 वॉल लेयर से सराउंडेड है. फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर्स, फोर्थ वन इज टेपेटम. दिस इज फोर्थ, नॉट थर्ड. सो फाइन. सो दिस इज फोर्थ लेयर. सो यहाँ पे भी एपिडर्मिस विल बी द आउटरमोस्ट लेयर, एंडोथीशियम just second layer to the epidermis, third is middle layers, so not 1, there can be 2 to 3 layers, which is known as just middle layers between the 4th layer and the 2nd layer. Fine. So what is the name of 4th layer? Tapetum. Tapetum. अब जो इसका इंटरेस्टिंग फीचर आता है ना, वो क्या आता है कि जो ऊपर वाली 3 लेयर्स मैंने आपको बताई, क्या क्या? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स. ये तीनों जो लेयर्स हैं, दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन. सो दे आर प्रोटेक्टिंग लेयर्स. लेकिन जो लास्ट लेयर है ना, दैट इज टेपेटम. टेपेटम इज नॉट मेंट फॉर प्रोटेक्शन. इट्स मेन फंक्शन इज नरिशमेंट, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड pollen sac और माइक्रोस्पोरेंजियम. इन 4 लेयर्स के अगर मैं आपको लोकेशंस बताऊं, सबसे बाहर फर्स्ट एपिडर्मिस, उसके जस्ट अंदर इन ब्लू सेकंड इज एंडोथीशियम, देन वो सबसे अंदर, ये मैंने यहाँ पे एक ही दिखाई है, बट इट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 2 to 3. ठीक है. सो थर्ड क्या?
middle layers, and last one, fourth, is tapetum. You can see these three layers are present on the periphery of the microsporangium sac जो है, जो टीएस अगर आप एंथर को देखते हो तो जस्ट साइड में बाइलोब डाइथिकस का ये जो थर्ड तीन लेयर्स है ये सारी साइड में पेरीफेरी में है, वाइल जो टेपेटम है इन ब्लू, दिस टेपेटम इज अराउंड द स्पोरोजेनस टिश्यू. ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली स्पोरोजेनस टिश्यू? स्पोरोजेनस टिश्यू इज homogeneous mass of cells in microsporangia. So it's just a kind of compactly arranged cells, homogeneous cells, which are present in microsporangia, which will further form microspores in general through different meiotic divisions. Fine. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका ये तीन layers meant for protection है, fourth layer is tapetum, which will be around your sporogenous tissue. Fine. And inside is sporogenous tissue, which is going to give rise to, which will be giving rise to your microspores, gametes, male gametes. Fine. और इसी को अगर हम enlarged view में देखते हैं तो आप देखोगे first layer is epidermis, second is endodermis, third is middle layers. देख रहे हैं यहाँ पे दो तीन layers आपको दिख रही है middle layers की black में. एंड यहाँ पे जो ये टेपेटम स्टार्ट हो गई है, टेपेटम को मैंने ऐसे डॉटेड क्यों दिखाया? बिकॉज टेपेटम का एक यूनिक फीचर है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी न्यूक्लियस. ठीक है, सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएट मेनी अ टाइम्स, और ये इसीलिए ऐसे मैंने आपको दिखाया है. देन जस्ट बिलो दिस टेपेटम लेयर ये क्या आ गए? MMCs, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. सो वो मैं आगे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी. तो स्पोरोजेनस टिश्यू इज जनरली इन यंग एंथर द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच विल गिव राइज टू microspore mother cells. Fine. So these microspore mother cells, as the name suggests, will form microspores. Fine. So this was a complete general view of your Androceium, right? And in the next video we will talk about the process of microsporogenesis and the structure of pollen grains. Fine.